Guys, welcome back to the channel. Today we will talk about rectification of an error. Now, as we know, in case of rectification of errors, we have three types. Like the first one is rectification before trial balance. The next one is after trial balance, and the third one is after final accounts. Okay. Now, as we know, in our syllabus, we basically go for after trial balance and after final accounts. In this video, I'm going to talk about rectification of errors after trial balance along with the preparation of suspense account. Now, regarding suspense account, हम लोगों को ये पता है कि in case of preparation of suspense account, we have got two types. One, where the suspense account difference will be given, and another where the difference will not be given. In this video, we have talked about the suspense account where the difference is not be given and you have to calculate the difference. And regarding rectification after final accounts, it will be same as rectification after trial balance. दोनों same होता है. बस फर्क यही है कि all the nominal accounts are replaced by profit and loss adjustment account. So we want to talk about after trial balance because एग्जाम में ज्यादातर आफ्टर ट्रायल बैलेंस का ही चांसेस रहता है. ठीक है. So I have prepared like 20 entries, 20 rectifying entries, which we have to 20 wrong entries which we have to rectify. Hopefully examination point of view से ये आपको बहुत मदद करेगा. So let's start our class without wasting time. Now there's the format. We have a correct entry, which is also known as original entry, wrong, then followed by the wrong entry and the rectified entry. Okay. Sometimes we call it original entry, sometimes we call it correct entry. Both the ways it is correct. Let's start. The first one, the total of one page of sales book was carried forward to the next page as 4513 instead of 4531. Now, the question over here is very easy. आपको बस ये देखना है कि जो सेल्स डे बुक है उसका टोटल में से गलती हुआ है. और गलती क्या हुआ है, हम लोगों ने फॉरवर्ड किया है 4513 instead of 4531. So we can see that it's undercasted. ठीक है नहीं, it should have been 4513. Instead of that, it should have been 4531. Okay, as you can see, it's carried forward to the next page as 4513 instead of this. मतलब ये correct है और ये आपका wrong है. तो आपको ये दिख रहा होगा कि हम लोगों ने गलती से इसको अंडर कास्ट कर दिया है. ठीक है. 4531 बड़ा होता है, 4513 छोटा होता है. It has been undercasted by 18 rupees. So over here we will simply rectify it by passing suspense account, and that is suspense account debit to sales account by 18 rupees. Next में बताया गया है the total of purchase day book was undercasted by 400. Now in इसमें बहुत स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं. परचेज डे बुक अंडरकास्ट बाई 400 मतलब है सिर्फ परचेज डे बुक का टोटलिंग में ही गलती हुआ है, बाकी सारे क्रेडिटर्स में कोई भी गलती नहीं. सो हम लोगों को हम लोगों ने गलती से परचेज डे बुक को अंडरकास्ट कर दिया है, तो अब उसको ठीक करने के लिए अंडरकास्ट मतलब गलती से घट गया है, अब उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा. तो रेक्टिफाई करने के लिए वी विल सिंपली एड ऑन 400 rupees. हाउ वी विल डू दैट? परचेज अकाउंट डेबिट टू suspense account, and that is by 400. Okay. The next one, cash discount received 150 from creditor. So the correct entry is creditor account debit to
discount received, and that is 150. Now what is the error? It was debited to discount account. Debited to discount account मतलब हम लोगों ने इसको discount allowed consider किया है. So the wrong entry is discount allowed account debit. Okay, that is 150 rupees. Correct. And nothing is mentioned about creditor. It means creditor has been correctly debited. Creditor में कोई भी गलती नहीं है. It has been correctly debited. So आपको क्या करना है? करेक्ट और रॉन्ग एंट्री को कंपेयर करिए. क्रेडिटर ऑन बोथ एंड्स आर करेक्ट. सो उसको हम लोगों ने काटा लगा दिया. आना चाहिए था डिस्काउंट रिसीव, गलती से आ चुका है डिस्काउंट अलाउड. सिचुएशन को ठीक करने के लिए आई हैव टू एंटर डिस्काउंट रिसीव. डिस्काउंट अलाउड को बुक से इरेज करने के लिए आई विल जस्ट क्रेडिट इट and the whole thing will be balanced by suspense account. So it comes to 300, 150 followed by another one. Okay, the next one. 300 received from Mr. Ghosh. So cash account debit, not Mr. Ghosh, sorry, it's M Ghosh. Cash account debit to M Ghosh. That is 300 rupees. Okay. Now it has been debited to the account of N Ghosh in sales ledger. ठीक है. तो हम लोगों ने बेसिकली क्या गलती किया है कि एन घोष को हम लोगों ने डेबिट कर दिया है. ठीक है. तो यहाँ पे जो रेक्टिफाइंग एंट्री होगा वो हम लोगों को ध्यान से पहले क्वेश्चन को और एक बार समझिए. लिखा हुआ है 300 रिसीव फ्रॉम मिस्टर घोष, ओके, हैज बीन डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ एन घोष. ठीक है. तो इस सिचुएशन में हम लोगों को, और एन घोष के साथ साथ यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है इन द सेल्स लेजर. ठीक है. तो इस सिचुएशन में हुआ क्या है, एम घोष इज क्रेडिटेड, मतलब एम घोष को हम लोग को क्रेडिट करना चाहिए था, जबकि हम लोगों ने एन घोष को रॉन्गली डेबिट कर दिया है. ठीक है. तो अब इसको ठीक करने के लिए हम लोगों को बस सिचुएशन को रिवर्स करना है. कैसे रिवर्स करना है? एम घोष को एंटर करना है, एन घोष को काटने के लिए क्रेडिट करना है, तो पूरा सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को इंट्रोड्यूस करना है. 300, that is 600 followed by 300 and 300. Okay, चलिए नेक्स्ट. 211 interest on overdraft was credited to interest account. I repeat, 211 interest on overdraft was credited to interest account. इसका मतलब जो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, अगर उसके लिए आप करेक्ट एंट्री देखोगे बेटा, तो क्या बनता है? करेक्ट एंट्री चेक करिए. तो इसका करेक्ट एंट्री बनता है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, इसको आपने क्या किया है? क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट कर दिया है. ठीक है. तो क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट मतलब आपने इसी सेम चीज को इंटरेस्ट रिसीव्ड कंसिडर किया है, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट. अब अगर आप सिचुएशन को रेक्टिफाई करने जाओगे तो सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट को आप डेबिट करो. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट था,
उसको डेबिट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड को कैंसिल करने के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट को डेबिट करें, और पूरा सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को इंट्रोड्यूस करें। तो ये हो गया 211 और यहाँ पे डबल अमाउंट हो जाएगा, दैट इज 422। ठीक है, समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट को डेबिट होना चाहिए था, उसके जगह आपने इंटरेस्ट रिसीव्ड को क्रेडिट कर दिया। अभी रेक्टिफाइंग एंट्री में इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड को नलीफाई किया गया है, उसको नलीफाई करने के लिए डेबिट पे लाया गया है, और पूरा सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए सस्पेंस अकाउंट लाया गया है 422 रुपीज। चलिए, नंबर 6। नंबर 6 में बोला गया है 450 स्पेंड ऑन रिपेयर ऑफ डिलीवरी वैन। मतलब ये होगा सिंपल रिपेयर अकाउंट डेबिट। ठीक है, 1450। जबकि आपने इसको कर दिया है मोटर व्हीकल अकाउंट, मतलब मोटर व्हीकल को आपने डेबिट कर दिया है। तो ये सिंपली एरर ऑफ प्रिंसिपल है, जहाँ पे हम लोगों ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कंसिडर किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बस इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स इन द सेंस, रिवर्स नहीं, आपको हाँ रिवर्स ही करना है, क्योंकि रिपेयर को आपको लाना है। सो फॉर दैट रिपेयर अकाउंट डेबिट, और मोटर व्हीकल को ओमिट करना है बुक से, मतलब हटाना है, इरेज करना है, क्योंकि आपने गलती से उसको डेबिट कर दिया है। तो टू मोटर व्हीकल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट होगा 1450, 14। चलिए, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 7 नंबर एंट्री पे। देखिए 7 नंबर क्या बोल रहा है। परचेस ऑफ गुड्स फॉर द कंजम्पशन ऑफ प्रोपराइटर डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। प्रोपराइटर अपने कंजम्पशन के लिए गुड्स खरीद रहा है, दैट मीन्स ये होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, क्योंकि कैश में ही पेमेंट किया है, और अमाउंट है 800 रुपीज। आपने गलती से इसको बिजनेस का परचेस कंसिडर कर लिया है, और आपने परचेस को डेबिट किया है और कैश को एज यूजुअल क्रेडिट किया है। अमाउंट पे कोई गलती नहीं। अब ये कैश कैश कट जाएगा, बिकॉज इट इज करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है। ड्राइंग्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बिकॉज ये एक्चुअल में ड्राइंग्स ही है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 800। परचेस को नलीफाई करने के लिए हम लोग लिखेंगे टू परचेस 800। दैट्स इट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एंट्री, नंबर 8। Check received from Amar, a debtor, 5,000 was directly received by the proprietor, was deposited into personal बैंक अकाउंट। इसका मतलब अमर ने एक चेक दिया, अमर जो कि डेटर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेटा बैंक अकाउंट डेबिट। सॉरी, आप बैंक अकाउंट डेबिट नहीं लिख सकते, वो तो रॉन्ग था। सॉरी, क्योंकि चेक को डायरेक्टली प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल अकाउंट में ले लिया है, तो ये होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू अमर अकाउंट। करेक्ट। आपने इसको कंसिडर किया है कि चेक बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुआ है, जबकि ये चेक जो है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमर डेटर वाज डायरेक्टली received by the proprietor, was deposited into personal bank account, deposited into his personal bank account। तो एक तरफ से देखा जाए तो यहाँ पे कोई गलती है ही नहीं, क्योंकि nothing is mentioned, it means that the entry has not been passed, the entry has not been passed। In that case, we will straight away go for the rectifying entry, and the rectifying entry is drawings account debit to, जिस बंदे से चेक मिला था उसका नाम आप इनपुट कर दो, टू अमर, एंड दैट इज 5,000। ओके, चलिए, अब ये 8 हो गया।
अब आते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 बोल रहा है टोटल ऑफ परचेज डे बुक ऑफ सितंबर हैज बीन पोस्टेड टू द नॉमिनल लेजर एज 3850। ठीक है, इसका मतलब जो परचेज डे बुक का जो टोटल है, ठीक है, आई रिपीट, परचेज डे बुक का जो टोटल है उसको आप लोगों ने नॉमिनल अकाउंट में पोस्ट किया है एज 38 was posted in nominal account as 3850। ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट हो गया, इसको कंप्लीट कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ 4850, जाना चाहिए था 4850 और गलती से हम लोगों ने उसको भेज दिया है एज 4850। ठीक है, एक बार वापस क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से और फिर आप वहां से अपना आंसर आराम से फिगर आउट कर पाओगे। क्वेश्चन है कि द सेल ऑफ the purchase day book of September has been posted in nominal ledger as 3850 instead of 4850। मतलब 100 रुपया आपने कम लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका इसका जो सिंपल मीनिंग यही निकल करके आता है कि परचेस में हम लोगों ने, आई रिपीट, परचेस में हम लोगों ने 100 रुपीज कम रिकॉर्ड किया है। ये लिखा है ना, पोस्टेड इन द नॉमिनल लेजर। नॉमिनल लेजर मतलब अब ये आपको सेल्फ बैलेंसिंग की तरफ लेकर के जाता है। ठीक है, वहीं पे हम लोग नॉमिनल लेजर वाला टर्म फर्स्ट सीखे थे। ठीक है, तो वहां पे मतलब नॉमिनल लेजर में अगर आप परचेस को 3850 लिखते हो इंस्टेड ऑफ 4850, इसका मतलब आपने परचेस में कम रिकॉर्ड किया है। तो आप सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए आप परचेस पे एंट्री डालोगे 100 रुपए का। दैट कम्स टू परचेस अकाउंट डेबिट टू suspense 100 rupees. Okay. Next, the total of return inward book 420 has not been posted to the ledger। चलिए अभी पोस्ट कर देते हैं। रिटर्न इनवर्ड बुक का जो टोटल है दैट इज 420 रुपीज, उसको हम लोगों ने अभी तक लेजर में पोस्ट नहीं किया है, तो अभी हम लोग उसको पोस्ट कर देते हैं। तो आइए, दैट इज नंबर 10। तो कैसे पोस्टिंग होगा बेटा? रिटर्न इनवर्ड जो है वो सेल्स रिटर्न को ही रिटर्न इनवर्ड हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार उस पे एंट्री डाल देंगे, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट 420 टू सस्पेंस 420। चलिए ये भी हो गया। अब यहाँ देखिए 11, कैश डिस्काउंट ऑफ 800 was entered in cash book। cash discount of 800 received entered in cash book but not posted to the ledger। तो चलिए इसमें भी करेक्ट रॉन्ग का कोई सीन नहीं, सीधा रेक्टिफाइड मारते हैं। तो रेक्टिफाइड होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीट। अब आप पूछोगे सर कैसे? देखिए, ये लोग बोल रहे हैं कि आप जो कैश डिस्काउंट है वो कैश बुक में लिखे, ठीक है, लेकिन नॉट पोस्टेड टू लेजर मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड में उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है। बात समझे? तो डिस्काउंट रिसीव्ड में अपने को लिखना है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट आइटम है तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, और डबल एंट्री के हिसाब से डेबिट साइड पे भी तो अमाउंट होना चाहिए उस सिचुएशन को मतलब डबल एंट्री के कंसेप्ट को बैलेंस करने के लिए। तो इसीलिए हम लोगों ने सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर दिया ताकि वो सिचुएशन जो है वो टैली हो जाए। ठीक है, तो एंट्री निकल करके आता है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। सिमिलरली अगर ये डिस्काउंट अलाउड के लिए होता तो आप वहां पे भी वैसे ही करते, वहां पे आप सेम एंट्री करते, बस रिवर्स करते, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड डेबिट पे आता है तो आप करते डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस। लेकिन क्योंकि यहाँ रिसीव्ड है इसीलिए आपने रिसीव को क्रेडिट किया, सस्पेंस को डेबिट किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे में हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, चेक ऑफ 6192 was received from राहुल
after allowing a discount of 92 was endorsed to Ram in full settlement of 7,000 but no entry was passed in the books. ठीक है, तो पहली बात आपको चेक मिला, किससे मिला? राहुल से मिला। तो जब चेक मिला आपने क्या एंट्री किया होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, आपने डिस्काउंट अलाउ किया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राहुल। ठीक है बेटा, तो चेक का अमाउंट है 6192। ठीक है, ये जो चेक है ये डिस्काउंट के बाद मिला है। ठीक है, इसका मतलब 6192 से डिस्काउंट ऑलरेडी कटा हुआ है। ठीक है, आफ्टर अलाउइंग हिम अ डिस्काउंट ऑफ 92, तो ये 92 डिस्काउंट अलाउड में आ गया। ठीक है, टोटल अमाउंट ड्यू कितना हुआ बेटा? 6192 प्लस 92, दैट कम्स टू 6284। ठीक है, इसी चेक को आपने क्या किया? राम को इंडोर्स कर दिया। ठीक है, करेक्ट। तो राम अकाउंट डेबिट, ठीक है, राम अकाउंट डेबिट, राम आप राम को इंडोर्स किया इन फुल सेटलमेंट ऑफ 7,000, मतलब राम को मिलना था आपसे 7,000, आपने यही वाला चेक उठा करके राम को दे दिया। तो टू बैंक 6192, इसका मतलब फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब बीच का जो गैप है वो डिस्काउंट रिसीव हो गया। ठीक है, सो दैट इज 7,000 माइनस 619, 808। ठीक है, अब सिचुएशन क्या हुआ है, यहाँ पे एक क्वेश्चन में एक लाइन मिसिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है नो एंट्रीज पास्ड इन द बुक्स, ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे होना चाहिए था चेक इज डिसऑनर्ड एंड नो एंट्रीज पास्ड इन, मतलब ये जो चेक हमने एंडोर्स किया राम को ये डिसऑनर हो गया और इसका कोई भी एंट्री बुक में पास किया नहीं गया है। सीधा हम लोग रेक्टिफाइंग एंट्री पे आते हैं। देखिए कैसे रेक्टिफाई होगा। सबसे पहला बात, अगर आप ध्यान से देखें तो राहुल जिससे मेरे को चेक मिला था, डिसऑनर होने के बाद राहुल वापस मेरा डेटर बन जाता है। तो राहुल अकाउंट डेबिट 62, राहुल अकाउंट डेबिट, पहले चैनल लिख लेते फिर अमाउंट लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद राम, राम जो कि मेरा क्रेडिटर था, एंडोर्स चेक डिसऑनर होने के बाद वो वापस से मेरा क्रेडिटर बन जाता है। तो टू राम अकाउंट हो गया। राहुल को मैंने डिस्काउंट दिया था लेकिन चेक डिसऑनर होने के बाद वो डिस्काउंट को कैंसिल करना पड़ेगा, तो हो जाता है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्रेडिट। और राम से जो डिस्काउंट मिला था वो मेरे को अब कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि जो चेक है वो डिसऑनर हो चुका है। तो डिस्काउंट रिसीप्ट को हम लोग कर देंगे। तो ये अपना जर्नल निकल करके आता है, राहुल बिकम्स माय डेटर अगेन, राम बिकम्स माय क्रेडिटर अगेन, डिस्काउंट रिसीव्ड इज टू बी कैंसल्ड, सो वी हैव डेबिटेड इट, और डिस्काउंट अलाउड को भी कैंसिल करना है तो इसलिए हम लोगों ने उसको भी क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, तो अब अमाउंट क्या होने वाला है? जैसे आप देखिए बाबू, डिस्काउंट अलाउड में 92 है तो यहाँ पे आप 92 लिखो, डिस्काउंट रिसीव्ड में है 808 तो यहाँ पे आप 808 लिख दो। करेक्ट, 808 आपने लिख दिया। अब जो अमाउंट ड्यू था, ठीक है, जो अमाउंट मेरा ड्यू था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अपना अमाउंट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो अमाउंट मेरा ड्यू था राहुल से वो था 6284, क्योंकि राहुल वापस से मेरा डेटर बन चुका है। और राम को मेरे को पे करना था 7,000, शाम को 7,000 से क्रेडिट कर। ठीक है, तो ये होल एंट्री निकल करके आया। बी वेरी केयरफुल विद दिस टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन, क्योंकि ऐसा रेक्टिफिकेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पे भी पूछा जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्लोजिंग स्टॉक जो है इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, होपफुली आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा।
चलिए, अब हम लोग आते हैं आगे। आगे में क्या लिखा हुआ है? आगे में लिखा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवरस्टेटेड बाय 5000। ठीक है, तो यहाँ पे भी सीधा कुछ करना नहीं है, आपको सीधा रेक्टिफाइड एंट्री में आना है। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवरस्टेट हुआ है तो उसके लिए मेरे को जर्नल पास करना है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जैसे ओवरस्टेट मतलब ज्यादा लिख दिया है ना, तो आपको कम करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर अंडरस्टेट होता तो इसको उल्टा करते, उस टाइम पे होता क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। ठीक है, और बेटा याद रखिए, यही सेम क्वेश्चन अगर आफ्टर फाइनल अकाउंट देता तो उस ट्रेडिंग की जगह हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखते। नेक्स्ट, गुड परचेज फ्रॉम ए एंड को 3250 एंटर्ड इन सेल्स डे बुक 3520। अब ये जो है, ये पूरा बुक्स का गलती है। बोलने का मतलब है, परचेस अकाउंट डेबिट 3250 टू सप्लायर कर लेते हैं, या चलिए मान लेते हैं क्रेडिटर लिख देते हैं, टू क्रेडिटर। ठीक है, 3250, इसको आपने पूरा पूरी सेल्स बुक में लिख दिया। ठीक है, इसको आपने पूरा पूरी सेल्स बुक पे लिख दिया। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगा? यहाँ पे एंट्री होगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 3250, 3250। जब आप इसको रेक्टिफाई करोगे तो क्या एंट्री निकल करके आएगा? परचेस को हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया था तो अब रिकॉर्ड कर लेंगे। सेल्स को कैंसिल करने के लिए हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, सेल्स को कैंसिल करने के लिए हम लोगों को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर एक हम चीज देखें तो टू क्रेडिटर को यहाँ एंट्री देना पड़ेगा। ठीक है, और डेटर को वापस से हम लोग बुक्स पे से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया। अगर यही क्वेश्चन, याद रखिए, अगर यही क्वेश्चन में एक नाम मेंशन कर देते हैं, जैसे मान लीजिए जिस बंदे से हम लोग खरीदे हैं उसका नाम है राम। ठीक है, तो यही जो एंट्री है पता है कैसे हो जाता? यह यही एंट्री हो जाता, परचेस अकाउंट डेबिट 3250 टू राम 3250। वापस से यहाँ रॉन्ग एंट्री होता, राम अकाउंट डेबिट 3250 टू सेल्स 3250। अब जब हम लोग रेक्टिफाई करते इसको तो मेरा एंट्री निकल करके आता, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, सेल्स अकाउंट डेबिट, और एक ही बार लिखते राम, और राम में जो है उस अमाउंट को हम लोग डबल कर देते। इसका मतलब ये हो जाता है 6500। क्योंकि यहाँ पे कोई नाम मेंशन नहीं था, इसलिए हम लोगों ने डेटर और क्रेडिटर वर्ड का इस्तेमाल किया, इसीलिए इसका जर्नल जो है रेक्टिफाइंग एंट्री ऐसा निकल करके आया, 3250, 3250, 3250 एंड 3250। चलिए आगे बढ़ते हैं। 600 due from B has been omitted to be posted to sundry debtor, शेड्यूल ऑफ सन्ड्री डेटर में पोस्ट करना भूल गए। तो इसमें बेटा रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा? इसमें तो करेक्ट रॉन्ग कुछ है ही नहीं, इस पे आप सीधा सन्ड्री डेटर पे एक बार लिख दोगे। तो जर्नल होगा सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, दैट्स इट, सिंपल, 600। नेक्स्ट, bills receivable received from Rohit 6000 was endorsed to Rita in settlement of her due of 6100. The bill was dishonored. No entry of dishonor was passed. आप लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो किया ही होगा, तो ये पता होना चाहिए आपको कि जब बिल रिसीवेबल
डिसऑनर होता है, ठीक है, तो ड्रॉयर हमेशा अपने बुक पे सबसे पहले ड्रॉई को डेबिट करता है, जो कि है यहाँ पे रोहित। क्योंकि ड्रॉई जो उसका ड्रॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉई उसका डेटर होता है, जिससे उसको पैसा मिलने वाला है। तो जैसे ही वो बिल देता है तो हम लोग रोहित को क्रेडिट करते हैं, ऐसे लेकिन वही बिल जब डिसऑनर होता है तो वापस से ड्रॉई को हम लोग डेबिट करते हैं, सबसे पहला स्टेप। और जो कंसर्न्ड पार्टी है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे कंसर्न्ड पार्टी कौन है? रीता, जिसको हम लोगों ने राहुल का बिल एंडोर्स किया था। तो रीता को हम लोग क्रेडिट करते हैं 6100। अब आपको दिख रहा है कि 100 रुपया का गैप है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द डिस्काउंट जो रीता ने हमको दिया था, लेकिन अब बिल डिसऑनर होने के बाद उसको कैंसिल करने के लिए डिस्काउंट रिसीट को हम लोगों ने डेबिट में डाला। ओके, नेक्स्ट। Dishonored check received from X returned by bank. Dishonored check received from X returned by bank has been credited to bank account and debited to sundry creditor account. एक चेक जो है, डिसऑनर्ड चेक रिसीव फ्रॉम एक्स, मेरे को एक चेक मिला था एक्स से जो कि डिसऑनर हो गया है, ठीक है बेटा। तो इस केस पे करेक्ट एंट्री क्या होगा? करेक्ट एंट्री होगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब चेक मिलता है बैंक टू एक्स और जब डिसऑनर होता है तो एक्स टू बैंक होगा, ठीक है। अमाउंट यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि अमाउंट है 1000 रुपीज, तो ये 1000 रुपीज हो गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है हैज बीन रिटर्न बाय बैंक क्रेडिटेड टू बैंक। आपने बैंक को तो क्रेडिट किया है, ठीक है, आपने बैंक को क्रेडिट किया है जैसे आप क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, टू बैंक 100 रुपये, इसमें कोई गलती नहीं। गलती क्या हुआ है? हैज बीन डेबिटेड टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। अब एक्स तो आपका डेटर था भाई, ठीक है नहीं? एक्स तो आपका डेटर था, तो उसके जगह आपने सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट कर दिया। बताइए रेक्टिफाइंग क्या होगा? सबसे पहली बात, एक्स अकाउंट डेबिट को हम अपने बुक में एंट्री देंगे 1000 रुपये से। बैंक बैंक मेरा दोनों सूरत पे करेक्ट है, तो बैंक को हटाते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर को डेबिट करते हैं, मतलब वो तो ऑलरेडी डेबिटेड है, सॉरी, उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं टू सन्ड्री क्रेडिटर। तो ये देखिए रेक्टिफाई हो गया, क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब वो बुक से क्या हो गया? ऑमिट हो गया, ठीक है, वो बुक से ऑमिट हो गया। और हम लोगों ने सन्ड्री क्रेडिटर को भी क्रेडिट कर दिया। इससे क्या हो गया? वो बुक से हट गया और एक्स को, एक्स में रिकॉर्डेड नहीं था, तो एक्स में हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। चलिए नेक्स्ट। चेक रिसीव्ड फ्रॉम बी हैज बीन डेबिटेड इन कैश बुक बट द डबल एंट्री हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। मतलब आपको चेक जो रिसीव हुआ है आपने कैश बुक में तो एंट्री कर दिया, लेकिन बी पे एंट्री नहीं हुआ है। डबल एंट्री नॉट कंप्लीटेड मतलब बी के बुक्स में अभी तक रिकॉर्ड, मतलब बी अकाउंट में, बी के अकाउंट में कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग सीधा एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे, दैट इज बी अकाउंट डेबिट, सॉरी, नॉट बी अकाउंट डेबिट, चेक रिसीव हुआ था ना, तो ये होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी, दैट इज 40 रुपीज। ओके, नेक्स्ट। बिल receivable amount to 6000 was discounted for 5800, but the proceeds were posted to sales account। तो जब भी आपको बिल डिस्काउंट कराओ तो जर्नल निकल करके आता है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो बैंक अकाउंट में 5800, डिस्काउंट में 200 और बिल्स रिसीवेबल में 6000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। ये हम लोगों ने एंट्री कर लिया।
अब गलती क्या हुआ है वो ढूंढिए। गलती क्या हुआ है वो ढूंढिए। अगर आप गलती ढूंढने जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे लिखा हुआ है was posted to sales account as 580। ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है नो अदर एंट्री was passed in this respect। दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिखा हुआ है नो अदर एंट्री was passed in this respect। तो इसका मतलब जो रॉन्ग एंट्री है उस पे हम लोगों ने, सबसे क्लियर बात है, सेल्स को क्रेडिट किया है 580 रुपीज से। ठीक है। सेल्स को क्रेडिट किया है 580 रुपीज से। अब यहाँ पे हम लोगों को ये अज्यूम करना है कि बैंक अकाउंट करेक्टली रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है। हम लोगों को ये अज्यूम करना है कि बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं हुआ है। बैंक अकाउंट हैज बीन करेक्टली रिकॉर्डेड, सो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, दैट इज 5800। गलती क्या हुआ है? गलती ये हुआ है कि डिस्काउंटिंग चार्जेस को रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो चलिए पहले उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। डिस्काउंटिंग चार्जेस दैट इज 200। ओके। उसके बाद सेल्स को बुक से हटाना है, तो इन दैट केस सेल्स अकाउंट डेबिट 580। करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टू बिल्स रिसीवेबल को बुक्स पे रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो अब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज 6000, क्योंकि लिखा है ना नो अदर एंट्री हैज बीन पास्ड। यहाँ लिखा हुआ, चेक करिए, नो अदर एंट्री हैज बीन पास्ड, सिर्फ हमने सेल्स को क्रेडिट किया है। और ये अज्यूम किया जा रहा है कि बैंक को भी हम लोगों ने ठीक ठाक ही डेबिट किया है। बैंक में कोई गलती नहीं। ठीक है। गलती क्या है कि डिस्काउंटिंग चार्जेस और बिल्स रिसीवेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस 200 से डेबिट किए, सेल्स को 580 से डेबिट किए, बिल्स रिसीवेबल को 6000 से क्रेडिट किए, और पूरा माजरा को बैलेंस करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज 5200। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। एंड देयर आर लॉट मोर रेक्टिफिकेशंस, जैसे बैड डेट रिकवर्ड रिलेटेड होगा, फिर जाकर के ओमिशन, ओमिटेड, कैरीड फॉरवर्ड, बहुत सारी गलती होने वाले हैं। आपको उन चीजों को समझना है और अच्छे से करना है। बट ये हाईली, इन सारे एंट्रीज में बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए हमने इस वीडियो में इन सब के बारे में बात किया है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इंफॉर्मेटिव भी होगा आपके लिए। तो कीप ऑन रिवाइजिंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे सिंगल एंट्री के ऊपर, जहाँ पे एक सिंगल एंट्री के एक सम्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। टिल देन, थैंक यू।